विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे गए। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস চলে যাবে, যেটা আছে সেটা লিভিং ফসিল, জীবন্ত জীবাশ্ম। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने। পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ হতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে জিহাদিদের হাতে যেতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে মৌলবাদীদের হাতে যেতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে জামাতিদের হাতে যেতে দেব না। कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31/3/26 के पहले देने का ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही। প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানের কাছে যারা দেশটাকে নিজের দেশ বলে মনে করেন, আপনাদেরও রুজি রুটির ওপরে হাত বসাচ্ছে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা, যারা একদিন এই দেশকে নাপাক বলে, অপবিত্র বলে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যারা কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছিল, কান মে বিড়ি মুंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा, যারা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল हंस के लिए पाकिस्तान लड़के लेंगे हिंदुस्तान, আজকে তাদের জায়গা পশ্চিমবঙ্গ নয়, তাদের জায়গা ভারতবর্ষ নয়, এটা ধর্মশালা নয়, এটা আমরা ধর্মশালা বানাতে দেব না। তাই 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। আমি একটা কথাই বলবো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস বিশেষ করে এই এলাকাতে সনাতনী হিন্দুদের বিভক্ত করার জন্য কখনো জাতের নামে, কখনো ভাষার নামে আমাদের বিভক্ত করতে চায়। কিন্তু আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তৃণমূল কংগ্রেসকে কখনো বলতে শুনবেন না যে আমডাঙ্গার মুসলমানরা তারা বাংলাতে কথা বলে, টিটাগড়ের মুসলমানরা হিন্দিতে কথা বলে। তাই এবারের নির্বাচনে ভাষার নামে, জাতের নামে যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, সনাতন সংস্কৃতিকে আমরা রক্ষা করতে চাই, তারা ঐক্যবদ্ধ থাকব, বিভক্ত হব না। পশ্চিমবঙ্গকে গ্রেটার বাংলাদেশ হতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে জিহাদিদের হাতে যেতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে মৌলবাদীদের হাতে যেতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে জামাতিদের হাতে যেতে দেব না। এটাই আমাদের অঙ্গীকার, এটাই আমাদের শপথ। তাই মোদের নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী, আমাদের প্রতীক পদ্ম, জয় আমাদের লক্ষ্য, পরিবর্তন আমাদের
সংকল্প সবাই বলুন, পাল্টানো দরকার, 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 পাল্টানো দরকার। সবাই ভালো থাকবেন, নো ভোট টু মমতা করবেন। বন্দে মাতরম। দেখুন, তৃণমূল কংগ্রেস আর নেই, তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস চলে গেছে, তৃণমূল কংগ্রেস চলে যাবে। যেটা আছে সেটা লিভিং ফসিল, জীবন্ত জীবাশ্ম। কোনো লাঠি গুলির দরকার নেই, কোনো আক্রমণাত্মক শব্দের প্রয়োজন নেই। শুধু তৃণমূলকে দেখলে না বলে দিন, না, তৃণমূল মানে না, নো মিন্স নো। তৃণমূলের এই অত্যাচার, তৃণমূলের এই একদলীয় একচোটে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন মানুষ উৎপাটিত করে দেবে। যতই করো হামলা, বিজেপি নেবে বাংলা। এর অন্যথা কোনো কিছু হবে না। কালের দেওয়াল লিখন সবাই পড়ে নিয়েছেন। ভারী শিল্প ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এই শিল্পাঞ্চলে নতুন করে শিল্প সম্ভাবনার পুনরুজ্জীবন চাই। এখানের জুট মিলের হাল ফেরানো চাই। তাদের কর্মীদের চোখের জলের হিসাব নেওয়া চাই। এটাই আজকে আমাদের একমাত্র বার্তা। আর একই সঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের 2200 কিলোমিটারের বেশি একটা বর্ডার আছে। এই উত্তর 24 পরগনার পাশ দিয়ে যে বাংলাদেশের বর্ডার চলে যাচ্ছে, শুধু একমাত্র বিএসএফ কে দিয়ে হিউম্যান ট্রাফিকিং বন্ধ করা সম্ভব নয়। কেন্দ্র রাজ্যের যৌথ প্রচেষ্টা ছাড়া, রাজনৈতিক সহমত ছাড়া, জনসচেতনতা ছাড়া এই অনুপ্রবেশকে বন্ধ করা যাবে না। তাই আমার আবেদন প্রত্যেকটা জেলার বাসীর কাছে, প্রত্যেক জাতীয়তাবাদী মুসলমানের কাছে, যারা দেশটাকে নিজের দেশ বলে মনে করেন, আপনাদেরও রুজি রুটির ওপরে হাত বসাচ্ছে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারীরা, যারা একদিন এই দেশকে নাপাক বলে, অপবিত্র বলে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, যারা কলকাতার মাটিতে দাঁড়িয়ে স্লোগান দিয়েছিল, কান মে বিড়ি মুंह में पान लड़के लेंगे पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान देना पड़ेगा तब भी भारत स्वाधीन होगा, যারা আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলেছিল, হজ কে লিয়ে পাকিস্তান লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান, আজকে তাদের জায়গা পশ্চিমবঙ্গ নয়, তাদের জায়গা ভারতবর্ষ নয়, এটা ধর্মশালা নয়, এটা আমরা ধর্মশালা বানাতে দেব না। আর তার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখবেন, পশ্চিমবঙ্গের ডেমোগ্রাফি যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বদলে গেছে, শুধুমাত্র বিজেপি নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূল স্তরের যারা কর্মী আছে তাদের আহ্বান জানাচ্ছি, এই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অতীতের সমস্ত সিআইটিউর নেতৃবৃন্দের কাছে বলছি, সমস্ত বামপন্থী কর্মীদের কাছে বলছি, যারা গতবারে নো ভোট টু বিজেপিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, দয়া করে এবার নো ভোট টু তৃণমূলে অংশগ্রহণ করুন। তৃণমূলের বিসর্জন দিন, না হলে বাংলা বাঁচবে না। তাই 2026-এর নির্বাচন তৃণমূলের বিসর্জন। ধন্যবাদ। सबसे पहले आनंदपुर वेयर हाउस में मोमो फैक्ट्री में लगी हुई आग में मारे गए सभी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये जो अग्निकांड हुआ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। जो ये आनंदपुर वेयर हाउस में अग्निकांड हुआ है, वो ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के चलते हुआ है। ये फिर से एक बार बंगाल से उठा हुआ वंदे मातरम का नारा, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहुंचाने का निर्णय हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने।
मगर विडंबना देखिए, जिस वंदे मातरम का उद्भव बंगाल की माटी से हुआ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया, वो ही वंदे मातरम पर जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, ये ममता बनर्जी के सांसद वंदे मातरम पर चर्चा का विरोध कर रहे थे। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, वंदे मातरम का विरोध ये बंगाल की भूमि सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलिए, कर सकती है क्या? बंगाल के जन जन तक, हर एक मतदाता तक, हर एक नागरिक तक ये संदेश लेकर जाना है कि वोट बैंक की तुष्टीकरण के कारण घुसपैठियों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वंदे मातरम का विरोध कर रही है। ममता जी, मैं आपको बता दूं कि वंदे मातरम का विरोध कर कर आप नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रही। वंदे मातरम का विरोध कर कर आप बंगाल की अस्मिता और भारत के स्वाभिमान का विरोध कर रही है। सभी कार्यकर्ता भाई बहन मुझे बताएं, बंगाल की अस्मिता का विरोध बंगाल की जनता सहन कर सकती है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकती है क्या? मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने के लिए आया हूं कि बंगाल की अस्मिता का विरोध करने वाली तृणमूल कांग्रेस को अगले चुनाव में मूल समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए और यहां एक राष्ट्रभक्तों की सरकार लाइए। मैंने शुरुआत में कहा, आनंदपुर में लगी आग ये कोई हादसा नहीं है। 25 लोगों की जान गई है, 27 लोग लापता है। और ये कांड क्यों हुआ? ये जो मोमो फैक्ट्री के मालिक है, उसमें किसका पैसा लगा है? ये मोमो फैक्ट्री के मालिक किसके नजदीकी है? किसके साथ विमान में मोमो फैक्ट्री के मालिक विदेश की टूर लगाए हैं और अब तक मोमो फैक्ट्री के मालिक का अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? भाइयों बहनों, आज 25 लोग मारे गए, 27 लोग लापता है। मैं ममता जी को पूछना चाहता हूं, अगर ये घुसपैठिए होते तो आपका रिएक्शन ऐसा ही होता क्या? अरे बंगाल के नागरिक मारे गए हैं, इसमें वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या कर रही हो ममता जी? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और मैं आज यहां से बंगाल की मुख्यमंत्री को मांग कर रहा हूं कि इस हादसे की तटस्थ जांच, न्यायिक जांच करानी चाहिए और सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार लोग जो है उनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। मुझे शुभेंदु जी बता रहे थे, समीक भाई बता रहे थे, परिवार को वो मिलने गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, उन पर पुलिस ने बर्बरता की। मगर ये ममता जी, आपकी पार्टी का और आपकी सरकार का भ्रष्टाचार अब छिप नहीं सकता। आनंदपुर वेयर हाउस का अग्निकांड
ममता जी चीख चीख कर कहता है कि अग्निकांड में आपके लोग शामिल हैं। 32 घंटे बाद कोई मंत्री वहां पहुंचता है, पर्यावरण का एनओसी नहीं है, वेटलैंड पर गोडाउन बना है, गोडाउन बाहर से बंद था या खुला था? बंद था तो क्यों बंद कर दिया गया था? अंदर लोग जलते रहे, मरते रहे, चीखते रहे, बाहर नहीं आ पाए। और मैं आज ममता जी को कहने आया हूं, पर्दा डालना है तो डालो ममता जी, पर्दा डालना है तो डालो। अप्रैल के बाद भाजपा सरकार आएगी और अग्निकांड के आरोपियों को चुन चुन कर हम जहर की सलाखों के पीछे गए। भाइयों बहनों, हर तरह से बंगाल में एडमिनिस्ट्रेशन समाप्त हो गया। ये 2026 का साल टीएमसी को टाटा बाय बाय कहने का साल है, टाटा बाय बाय कहने का। यहां कटमनी, भतीजे की दादागिरी, पुलिस का दुरुपयोग और घुसपैठ एक इंडस्ट्री बना हुआ है। भाइयों बहनों, मैं घुसपैठ के लिए बाद में बात करूंगा, मगर गत समय जब मैं आया, मैंने कहा बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली। मुझे बताओ, आप सभी लोग, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है? अरे जोर से बोलो, बनने वाली है या नहीं बनने वाली? ये ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ा रही थी। ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम ने राम सेतु बनाया, तब रावण ऐसा ही मानता था कि इस प्रकार से मुझे कोई हरा सकता है क्या? मैं आपको बताता हूं, 2014 में हमें सिर्फ 2 सीट मिली थी। 2019 में 41% वोट और 18 सीटें मिली। 2024 में 39% वोट मिला है और 2021 की विधानसभा में 38% वोट और 77 सीटें लेकर शुभेंदु अधिकारी हमारे विपक्ष के नेता बने हुए। विपक्ष के नेता ममता दीदी, अब हमें तो 38% से 45% का जंप लगाना है। आप एक बार देखना, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 50% से ज्यादा होने वाला है और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। ये ममता दीदी कहती है कि केंद्र सरकार क्या करे। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था कि बाढ़ लगाने के लिए, फेंसिंग करने के लिए ममता बनर्जी आप हमें जगह नहीं दे रही हो, भूमि नहीं दे रही हो, इसके कारण फेंसिंग पूरी नहीं होती। नदी नाले से, दुर्गम पहाड़ों से जो घुसपैठिए आते हैं, उनको आपका पटवारी रोकता नहीं है, आपका पुलिस वाला रोकता नहीं है, और आप यहां से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उनको पूरे देश भर में भेज रही है। भाइयों बहनों, मैंने पार्लियामेंट में भाषण करा था, तृणमूल कांग्रेस के सांसद इसका विरोध करे थे, मगर कुछ दिन पहले मुझे बड़ा खुशी है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ को सारी भूमि 31
3/26 के पहले देने का ऑर्डर है। हाईकोर्ट ने स्वीकार करा कि ममता बनर्जी भूमि देने में सहयोग नहीं कर रही, घुसपैठिया रोकने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। और मित्रों, ये बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को मिला है। मगर मैं बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, आप ऐसा मत सोचना कि हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद भी ममता बनर्जी ये भूमि बीएसएफ को देगी। वो नहीं देगी, क्योंकि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए। मगर मैं साथ में बंगाल की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि 31/3 को ममता बनर्जी भूमि दे या न दे, अप्रैल के अंत में भाजपा का मुख्यमंत्री 45 दिन में सारी बाढ़ का काम पूरा कर देगा। ये हमारा बंगाल की जनता से वादा है और हमने कर दिखाया है। आसाम में कांग्रेस की सरकार थी, घुसपैठ नहीं रोकती थी। जैसे ही आसाम में भाजपा सरकार बनी, वहां घुसपैठ रुक गई। गुजरात में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती। राजस्थान में भाजपा सरकार है, वहां घुसपैठ नहीं होती है। और मैं बंगाल के सम्मानीय नागरिकों को अपील करने आया हूं, लाल सरकार भी बनाई, तृणमूल की हरी सरकार भी बनाई। एक बार भाजपा के केसरिया को मौका दे दो, हम घुसपैठ को रोक कर बताएं। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसको भी नहीं मानने वाली है। भाइयों बहनों, ममता के शासन में करप्शन को ममता बनर्जी ने इंस्टीट्यूशनलाइज करा है, संस्थागत किया है और ढेर सारे करप्शन के मुद्दे बने। और ममता बनर्जी कहती है कि करप्शन कहां है। ममता बनर्जी को मैं बताना चाहता हूं, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, एसएससी घोटाला, नगर पालिका नगर निगम भर्ती घोटाला, गाय तस्करी का घोटाला, राशन का घोटाला, मनरेगा का घोटाला, पीएम आवास का घोटाला। ममता बनर्जी जी, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है। ममता जी, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, भतीजे की मोह का, भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का मोतियाबिंब आपकी आंखों पर हुआ है। बंगाल की जनता मोतिया का ऑपरेशन कर दे, सब दिखाई पड़ेगा। मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, बंगाल में भ्रष्टाचार सारी सीमाएं पार कर गया है या नहीं कर गया है? बंगाल की जनता सिंडिकेट से परेशान है या नहीं है? जनता के विकास का रुपया तृणमूल के गुंडों के हाथ में जाता है या नहीं जाता है? ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, ये सारे लोग जेल में गए हैं। मैं आज
अरे यार, बाकी का काम सरकार बना दो, अपने आप पूरा हो जाएगा, आप चिंता मत करिए भाई। भाइयों बहनों, आज मैं ममता जी को चैलेंज देकर जाता हूं, आप में अगर हिम्मत है, आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रही है, तो इन लोगों को टिकट न देने की हिम्मत करके बताना, टिकट न देने की। वो नहीं कर पाएगी। अगर इन लोगों को टिकट नहीं दिया, अनुव्रत मंडल, पार्थ चैटर्जी, अजीत मैती, मदन मित्रा, कुंतल घोष, हकीम, इनको टिकट नहीं दिया तो वो भतीजे का नाम उगल देंगे, भतीजे का नाम उगल देंगे। मगर मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में सारे भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे और एक एक करप्ट व्यक्ति को चुन चुन कर जेल में डालने का काम करेंगे।